Well, good afternoon, everyone, and welcome back to Data Structures Theory session. As earlier we were discussing on binary search, tree, insert, and delete operation. That's what we have completed. After that, on Saturday and Monday lecture, we have looked at sorting techniques. That's also done. So coming back to nonlinear data structures again, as we are done with binary search tree. Now this is where up to your topics are going to be covered in mid 2. So we are done with that part. But as we have a lecture, let's continue and let's go through the further topics. So the next one is general trees. Now, what are the general trees and how do we convert general tree to binary tree? So general trees are those where you are not restricted to have either 0, 1 or at max 2 children. So in a general tree, you may have more than 2 children also. If it is having 3 subtrees, matlab 3 branches, you say that 3 children, then it can be called ternary tree or tertiary tree. And if it has n branches or n children, then it can be called n-array tree. Okay? So those are the general trees. Once again, what we call a general tree? A tree where you may have no subtree or maybe 1 child, or you may have more than 3, 4 and so on, any combination. In a single tree, if you have any kind of combinations, then it can be called a general tree. So let's take an example. This one is a general tree, we can say, because 8 has 3 children, whereas 2 has 2 children only. But if you look at 7, then it has 4 children, right? So in a single tree, you may have number of combinations. It may have 0 child, 1 child, 2 children, 3, 4, 5, any number of children is there, then we can say it is a general tree. अब जनरल ट्री से प्रॉब्लम क्या होगा कि जनरल ट्री का नोड आप आसानी से बना नहीं पाओगे, बिकॉज व्हेन वी क्रिएट अ ट्री व्हाट वी से we have a node where we have a data part and we have pointers, left pointer and right pointer अगर आप बात करते हो binary tree की. But if you say that it's a general tree, तो फिर आपके नोड के अंदर ठीक है डेटा तो ले लिया, लेकिन पॉइंटर कितने लोगे? 1, 2, 3, 4, कितने पॉइंटर? So general tree के लिए number of pointers will be not fixed, and so you will not be able to easily define your node. Well, in that case आपको क्या करना होगा? Even pointer के लिए भी आपको dynamic जाना पड़ेगा. So it can be done. I'm not saying it cannot be. It can be done, but that process will be somewhat complex one and lengthier one. So sometimes if you want to make your process easier, what you do is you convert this general tree to binary tree. इस general tree को आप binary में convert कर लो and then go with the binary tree algorithms, right? So the next point is, how do we convert general tree to the binary tree? Now let's have a look at that process. You have a general tree and you want to convert it to binary tree. Well, you just need to follow 3 steps. Okay? Root in a general tree will be as it is the root of binary tree. Now whatever I'm writing here is going to be followed in the entire tree. Remember, in entire tree. अगर मैं root की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि root मतलब सिर्फ 8. If you focus on subtree, तो उसका root भी root ही होगा. 7 will be the root of that subtree. Okay? So whatever we are discussing here is going to be followed by the entire tree. तो पूरा ट्री देखो या सब ट्री देखो या कोई भी पार्ट देखो, इफ देयर इज अ रूट तो वो सेम रूट बनेगा बाइनरी ट्री का एज इट इज. देन व्हाट हैपेंस? द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, बिकॉज वी हैव मोर देन वन ट्री, तो लेफ्ट राइट तो नहीं रहेगा, तो हम लेफ्ट मोस्ट भी बोल सकते हैं. सो द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड
will become the left child in binary tree. Okay, leftmost or the left child in a general tree will become the left child of binary tree. That's the second point. And the third point is sibling of a node. Okay, sibling of a particular node will become the right child of that node. Look, of that node. Remember, I'm not saying right child of a parent, but it's a right child of the same node. नोड x है तो ये x का ही right child बनेगा. So you just have to follow these three rules and you'll be able to convert your general tree to binary tree. So let us apply this thing on the given general tree and let's try to create a binary tree here. So we'll start with the first one, root. So we start with 8. Now let me create one separate list just to check कौन कौन से नोड अभी हमने कंसिडर कर लिए हैं और कौन कौन से नोड कंसिडर करने बाकी हैं. Just to remember that thing, let's go through the process. So general tree का root 8 will become the root of binary tree. Then leftmost child of a general tree, मतलब 8 का leftmost child क्या हो गया? 2. So that 2 will become the left child of binary tree. Second point. Okay. And then the third point, sibling of a node. अब 8 का कोई sibling है? 8 का कोई sibling है? नहीं है. तो 8 का कोई right child भी नहीं होगा. Okay. अगर 8 का कोई sibling है तो 8 का right child बनता. लेकिन 8 का कोई सिबलिंग नहीं तो 8 का कोई राइट चाइल्ड नहीं. फाइन. सो वी हैव सीन ऑल थ्री कंस्ट्रेंट्स ऑन 8. तो 8 का काम खत्म. तो ये जो लिस्ट बना रहा हूं मैं वहां पे मैं उसको स्ट्राइक आउट करते जाऊंगा. ओके, 8 का काम खत्म, अब उसको भूल जाओ. तो आपके लिस्ट में कौन बाकी रहा? 2. नाउ लेट्स फोकस ऑन 2. अगर आप 2 पे फोकस करते हो देन एक्चुअली यू आर फोकसिंग ऑन दिस सब ट्री. ओके, 2, 10 और 15. सो यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन 2, 10 एंड 15. ये वाले सब ट्री पे फोकस करते हो. नाउ इफ दिस इज योर जनरल ट्री तो इसके लिए इफ दिस इज योर जनरल ट्री तो इसके लिए बाइनरी ट्री क्या होगा? रूट विल बी रूट एज इट इज, लेफ्ट चाइल्ड विल बी लेफ्ट चाइल्ड एज इट इज, 10 का 10, राइट. और 10 का सिबलिंग कौन है? 15. सो 10 का राइट चाइल्ड बन जाएगा. 15 जो है वो 10 का राइट चाइल्ड बन जाएगा. एंड सेम वे अगर 2 का कोई सिबलिंग है, 7 इज द सिबलिंग ऑफ 2, तो 2 का राइट चाइल्ड 7 होगा. सो if you are confused in a bigger tree, then what you can do is you can focus on the subtree part only, convert it and then join that to your solution. ये कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए कंफर्टेबल हो देन गो फॉर द डायरेक्ट सॉल्यूशन. कैसे? लेट्स फॉलो इट. 2 becomes root, 2 becomes root, no problem. Then 2 का leftmost child is what? 10 will become the left child of 2. So 10 नया नोड आया, लिस्ट में डाल दो. And the third point, sibling of that node, 2 का sibling कौन है? 7 will become the right child of 2. So 7 यहाँ पे आएगा. We have explored 7 also. Okay. और 2 के लिए ये तीनों काम खत्म, 2 का काम खत्म. नेक्स्ट आप फोकस करोगे किस पे? 10 पे. लेट अस फोकस ऑन 10. 10 एज अ रूट बिकम्स अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री. ओके, ऐसा ही है. देन 10 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, वेल कोई नहीं है, ठीक है, भूल जाओ. 10 का राइट सिबलिंग इज 15.
So that becomes the right child of 10 here. So that's it. What you need to do is you have to follow these 3 steps one by one. 10 का काम खत्म, 10 को भूल जाओ, 15 एक्सप्लोर हुआ था, keep it in your list. So very quickly let me go through this entire process. Now 7, next is the 7. 7 पे focus करो. Focus on 7. 7 का leftmost child 5 will become the left child of 7. 5. और 7 का right sibling जो है 30 will become the right child of 7. 30. So we have explored 5 and 30 और 7 का काम खत्म. नेक्स्ट हम फोकस करेंगे 15 पे. ओके 15 का लेफ्ट चाइल्ड नथिंग, 15 का राइट सिबलिंग नथिंग, 15 का काम खत्म. देन वी फोकस ऑन 5. ओके 5 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, छोड़ो. 5 का सिबलिंग यस इट इज देयर 12, तो 5 का राइट चाइल्ड बनेगा 12. 12 एक्सप्लोर हुआ, सो 5 का काम खत्म. नेक्स्ट वी फोकस ऑन 30. ठीक है 30 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, लोग अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इस तरह से बनाया, बट रिमेंबर जनरल ट्री के अंदर लेफ्ट राइट जैसा कुछ नहीं होता. सो 23 इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इन ऑफ 30, तो वही लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 30 का. एंड डू 30 हैव एनी राइट सिबलिंग? नहीं, तो छोड़ दो ऐसे ही. 30 का कोई राइट सिबलिंग नहीं, तो 30 का कोई राइट चाइल्ड नहीं. सो 30 का काम खत्म. नेक्स्ट वी फोकस ऑन 12. ओके लेट अस फोकस ऑन 12. 12 का लेफ्ट चाइल्ड 18. 12 का राइट सिबलिंग 20, so that will become the right child of 12 here, 20. So we have explored 18 and 20. Let's add it to our list. 12 का काम खत्म. Then we see 23. Okay 23 पे फोकस करो. 23 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड 11. So let me make some space here. So 30 is actually right child of 7. और अब आगे बढ़ते हैं. So 23 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड 11, so that will become the left child 11 here. 23 का कोई राइट सिबलिंग नहीं है, so forget it. 23 का काम खत्म, 11 ऐड हुआ. नेक्स्ट इज 18. लेट अस फोकस ऑन 18. 18 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, लेकिन 18 का राइट सिबलिंग है 19, so that will become the right child of 18 here in binary tree. And we have explored 19, right? So likewise you go through the process. Next is what? 18 का काम खत्म. Next is what? 20 का फोकस करो. 20 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कोई नहीं, हाँ, लेकिन 20 का राइट सिबलिंग है 16, so that will become the right child of 20. And you have explored 16. 20 का काम खत्म. नेक्स्ट इज 11. ओके लेट्स फोकस ऑन 11. 11 का कोई चाइल्ड नहीं, लेकिन 11 का राइट सिबलिंग है 14, so that 14 will become the right child of 11 in binary tree. Okay, and you have explored 14. 11 का काम खत्म. फोकस ऑन 19. 19 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, 19 का राइट सिबलिंग नहीं, कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं करेंगे. Let's go further. Next is 16. 16 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं और 16 का राइट सिबलिंग नहीं, मतलब 16 का काम भी खत्म. फोकस ऑन 14. 14. 14 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, ओके, लेकिन 14 का राइट सिबलिंग है 28, so that will become the right child of 14. 28. 14 का काम खत्म. 28 को देखो. 28 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, 28 का राइट सिबलिंग नहीं, so we are done. So this will be your solution. Okay, this can be your solution from general tree to binary tree. Root will be root,
leftmost child will be the left child, and right sibling will become the right child of that node in binary tree. Okay? Any confusion or question in this process? Great then. So look, this general tree to binary tree conversion is a small topic in your, let's say, content which we have to cover. Very rarely I've seen this kind of a question is coming anywhere. But you should be knowing this process, and that's why we have covered this thing here. So that's the general tree and general tree to binary tree conversion process. Now let's go through and cover the next topic, which is threaded binary tree. Now we are talking about threads. It is a binary tree, but we are talking about threads here. Now what is thread? Look, if we talk about simple binary tree, तो बाइनरी ट्री में जो लीफ नोड है या तो फिर जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, वहां पे आप क्या स्टोर करते हो? पॉइंटर में नल. यू स्टोर नल वैल्यू इन दोज पॉइंटर्स. एक तरह से वो मेमोरी वेस्ट ही हो रही है. नल, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट. सो if there is a way to utilize those memory which can help you in some other processes, अगर उस नल की जगह पे आप कुछ स्टोर करो जो आपको हेल्प करे आपकी कोई अलग प्रोसेस में, देन बेटर टू हैव इट. अब वो अदर प्रोसेस क्या हो सकती है और हम उसको यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं? सो लेट्स फोकस ऑन द ट्रावर्सल प्रोसेस. अगर आपको ट्री ट्रावर्स करना है तो रिकर्जन में जाते हो. अगर रिकर्जन नहीं करना है, इटरेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से एक स्टैक लेना पड़ेगा जो प्रीवियस नोड, पेरेंट नोड को याद रखेगा. What if you don't want to have that stack? Can a tree be traversed using iterative process only without stack? Well, no, there is no way. But it can be done if you use threads. If you use threads. So how? If in a binary tree, जहां पे भी उसका right child नहीं है, if that node does not have a right child, then in that place let us make use of a thread. Now what is that thread? Thread is nothing but, let's say, अगर आप in order successor का एड्रेस वहां पे रखते हो, नल स्टोर करने के बजाय आप क्या करते हो? आप वहां पे इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस अगर वहां पे डालते हो, देन दैट एड्रेस इज अ थ्रेड. इट्स अ थ्रेड टू द इन ऑर्डर सक्सेसर node. Now when you do this kind of a threading process, what you can go for is you can go for the traversal process without recursion and without having use of stack. और उससे फायदा क्या होगा? Which will consume, अगर रिकर्जन से जाते हो तो वो ज्यादा मेमोरी और टाइम कंज्यूम करता है. अगर रिकर्जन को अवॉइड किया तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा मेमोरी नहीं लगेगी. दैट विल बी द बेनिफिट. So how it looks and how it can be done? Let us take an example of a tree, a binary tree, and let us see what are those threads. Okay, so सबसे पहले आप क्या करते हो? You are going to find all the nodes which are having right pointer null. पहले ये ढूंढो कि राइट पॉइंटर कहां कहां पे नल है. सो वेल, आप बोलोगे कि हाँ, डी का राइट पॉइंटर नल है, बी का राइट पॉइंटर नल है, ई का राइट पॉइंटर नल है, एंड देन सी का राइट पॉइंटर नल है. So you have 4 pointers on the right side which are null, and you want to utilize those 4 pointers.
तो वहां पे हमें क्या स्टोर करना है, वहां पे हमें इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस स्टोर करना है. नाउ व्हाट इज इन ऑर्डर सक्सेसर? So for that you have to traverse this tree in order first. In order traverse करो, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा D, B, A, E, C. This is going to be your in order traversal sequence. अब इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस अगर आपके पास है तो आप आसानी से सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ढूंढ सकते हो. बाद में जो आता है वो सक्सेसर, उसके पहले जो आ गया वो प्रीडिसेसर. हमें चाहिए सक्सेसर. सो लेट्स फाइंड भाई डी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है. इट इज बी, राइट. तो डी के राइट पॉइंटर में हम किसका एड्रेस रखेंगे? बी का. लेट अस स्टोर द एड्रेस ऑफ बी इन द राइट पॉइंटर ऑफ डी. सो वो लिंक मिल जाएगी आपको. नेक्स्ट देखोगे बी का सक्सेसर कौन है? ए. ठीक है, तो बी के राइट पॉइंटर में आप ए का एड्रेस रख लो. उसके बाद देखोगे ई का सक्सेसर कौन है? सी. ठीक है, ई के राइट पॉइंटर में आप सी का एड्रेस रख लो. देन यू गो फॉर सी का सक्सेसर कौन है? कुछ नहीं, मतलब नल. सो लेट इट बी नल. सी का सक्सेसर राइट पॉइंटर लेट इट बी नल. वो जैसे ही है रहने दो. So this becomes your right threaded tree. This becomes your right threaded tree. अब आप बोलोगे कि सर ये विदाउट रिकर्जन और विदाउट स्टैक, विदाउट रिकर्जन एंड विदाउट स्टैक ट्रावर्स कैसे होगा? वेल इट्स वेरी मच इजी. आप जब तक लेफ्ट जा सकते हो जाओ. जैसे ही लेफ्ट खत्म हो गया तो नोड को प्रिंट करके आप उसका राइट पॉइंटर ले लोगे. अब अगर राइट चाइल्ड है तो वो राइट चाइल्ड देगा, राइट चाइल्ड नहीं है तो वो आपको बैकवर्ड पाथ देगा, वो आपको ले जाएगा पेरेंट के पास. तो जो पेरेंट हम स्टैक के अंदर स्टोर करते थे वही पेरेंट अब हमें राइट पॉइंटर से मिल रहा है, तो स्टैक की जरूरत नहीं. करेक्ट. So that's how this helps us to avoid recursion, to avoid stack, to remember the parent node. And then you may simply go for conditional iterative process. So you can traverse your tree without recursion. Now just like right threaded tree, you can also have left threaded tree. You can also have left threaded tree. वहां पे आप क्या देखोगे? जो भी नोड लेफ्ट पॉइंटर नल है वो देखो. ई का लेफ्ट नल है और डी का लेफ्ट नल है. Now if you want to go for left threaded tree, okay, then you simply store in order predecessor. प्रीडिसीजर का एड्रेस वहां पे रखो. तो ई का प्रीडिसीजर कौन है? ए. ई के लेफ्ट में हम ए का एड्रेस स्टोर करेंगे. और डी का प्रीडिसीजर कौन है? कुछ नहीं, नल, तो उसको नल ही रहने दो. सो दैट बिकम्स योर लेफ्ट थ्रेडेड ट्री. अगर राइट थ्रेडिंग में जाना है तो सक्सेसर देखो, लेफ्ट थ्रेडिंग में जाना है तो प्रीडिसीजर देखो, उसका एड्रेस स्टोर कर दो एंड यू आर डन. So any confusion in these threads? ये थ्रेड आपको बैकवर्ड लिंक देंगे. ट्री में बैकवर्ड लिंक आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन ये थ्रेड आपको बैकवर्ड लिंक देते हैं. So that's why we call it a thread to the parent. Now when you are maintaining these pointers, you have to be aware कि ये जो एड्रेस है वो चाइल्ड एड्रेस है या थ्रेड एड्रेस है. किसी ना किसी तरह से ये आपको याद रखना होगा.
But this is how your threaded tree will look like. Let's take one more example. Before that, let's consider the advantage and disadvantage. So the advantage is what? Threading will avoid a lot of memory that caused by the recursion. Recursion की जरूरत नहीं तो memory की जरूरत नहीं. So आप memory बचा सकते हो by going through the threading part. And every node in this, means every leaf node in this, can keep a record of its root or its parent. तो ये भी एक एडवांटेज है, बैकवर्ड पाथ आपको मिल जाएगा. But there are a few disadvantages also. This kind of tree becomes more complex क्योंकि pointers बढ़ जाएंगे यहाँ पे, child pointer and thread pointer बढ़ जाएंगे. So it becomes more complex as well as it is more prone to errors. अगर आप ये डिफाइन नहीं करते हो कि ये एड्रेस चाइल्ड का है या थ्रेड पेरेंट का, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी. आप उसको चाइल्ड मान के आगे बढ़ जाओगे तो वो तो लूप बन गया, सर्कल. अगर सर्कल बन गया तो वो ट्री नहीं, वो ग्राफ हो जाएगा. सो देयर इज एन एरर. सो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इट इज मोर prone to errors, just because we have to remember which one is the child address and which one is the parent address या तो फिर thread. So let's take one more example. What if you have been given this binary tree and you want to make it a threaded tree? Very much simple. जहां पे भी आपको राइट पॉइंटर नल दिखता है, आइडेंटिफाई दोस राइट पॉइंटर्स, और वो हर एक राइट पॉइंटर को आप पॉइंट करवाओगे कहां पे? इन ऑर्डर सक्सेसर पे. That gives you the in order successor. तो ये हो गया आपका right threaded tree. Now if you focus on the left part, जहां भी आपको left pointer null दिखता है, ढूंढो. And आप लेफ्ट में क्या स्टोर करोगे? यू आर गोइंग टू पॉइंट इन ऑर्डर प्रीडिसीजर हियर. दैट गिव्स यू द लेफ्ट थ्रेडेड ट्री. एंड इफ यू मेंटेन बोथ, अगर आप दोनों को रखते हो, देन इट्स सिंपली थ्रेडेड ट्री. लेफ्ट राइट दोनों थ्रेड है, सो दिस बिकम्स अ थ्रेडेड ट्री. Okay, so that is the threading part. Threading आपको कुछ फायदा भी देगा, लेकिन वो आपके कोड, आपके डेटा स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा. एंड कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ गई तो मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं. इफ यू कैन हैंडल दोज थिंग्स, देन it remains on the benefit part. So that's the threaded binary tree. Any questions till now? Okay, so we have seen general tree to binary tree, and we have seen threaded binary tree. Now let's go through a few applications of binary trees, or simply trees. Let's go through the applications of trees. आप ट्री को कहाँ यूज कर सकते हो? Where you can use trees? Well, the first application, you can use tree to actually generate expression tree. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप ट्री में एक्सप्लेन या तो फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो. So binary trees are widely used to explain or store algebraic equations. Now how? Now if you focus on binary tree, it can have either 0, 1 or 2 children. इसका फायदा क्या होगा? Most of your mathematical operators are binary operators. If you say it is a plus b, right? If you say it is a plus b, तो ये प्लस ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया.
अगर उसके आंसर को आप सी में स्टोर करते हो तो अगेन इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया. सो इन जनरल यू कैन गो फॉर बाइनरी ट्री. लेकिन अगर आपके पास टर्सरी ऑपरेटर या कोई और ऑपरेटर है तो मे बी आप टर्नरी ट्री यूज कर सकते हो. इन जनरल ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्री में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और ट्री बनाते हो तो एक्चुअली आपके ऑपरेटर का प्रेसिडेंस भी हैंडल हो जाता है. मतलब प्रेसिडेंस देखना है तो क्या होगा, वेल व्हेन यू राइट योर कोड, आपने एक बार ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. अब जब कंपाइलर आपके कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल कोड में, तो वो ये एक प्रोसेस के थ्रू पास होगा. देयर आर नंबर ऑफ फेजेस. कंपाइलेशन प्रोसेस के काफी सारे फेजेस हैं. व्हेन यू लर्न कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट यू विल गो थ्रू इट, और तब आप देखोगे कि उनमें से एक फेज ऐसा है जहां पे आपके हर एक स्टेटमेंट का ट्री बनता है, एक्सप्रेशन ट्री बनता है. और वो किस तरह से दिखेगा, इफ यू फोकस ऑन दिस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप पहले क्या करते हो, ए और बी पे प्लस अप्लाई करते हो, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको आप सी में स्टोर करोगे. सो दिस इज हाउ दोज एक्सप्रेशन ट्री लुक्स लाइक. Okay, so if you say you want to create expression tree for this one, they give an example a minus b plus c into d. Now generally infix expression में हम bracket क्यों करते हैं, just to overwrite operator precedence. बाकी ये bracket की कोई जरूरत नहीं है. तो जब हम expression tree बनाएंगे तब भी हम bracket को नहीं लेंगे. You can easily say that okay, you are going to perform a minus b first. जो भी आंसर मिलेगा आप साइड में रखोगे, आप अप्लाई करोगे C इंटू डी, और इन दोनों का जो आंसर मिलेगा उस पर आप प्लस करोगे. सो दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशन ट्री लुक्स लाइक फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन. और कंपाइलर जो है वो इस तरह से एक्सप्रेशन ट्री बनाता है. Now this expression tree can give you many more information. अगर ये ट्री परफेक्ट बना है तो आपकी सिंटेक्स भी परफेक्ट थी. अगर सिंटेक्स में आपने कुछ मिस कर दिया तो ये ट्री भी परफेक्ट नहीं बनेगा. एंड यू कैन इजीली से दैट सिंटेक्स चेक भी हो गया. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है या नहीं करना है, जरूरी है नहीं है, वो भी इसमें पता चल जाएगा व्हेन इट क्रिएट्स ट्री. तो कंपाइलर वो भी प्रोसेस कर लेता है साथों साथ. So this kind of trees will be generated when you have expressions and it is called expression tree. तो ये एक एप्लीकेशन हो गया ट्री का. Other application is a tournament tree. Well, very much simple. T20 चल रहा है ना. मान लो कि आपके पास एक टीम है T1, दूसरी टीम है T2, तीसरी टीम है T3, चौथी टीम है T4. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप दो टीम के बीच में दो टीम के बीच में एक मैच रखते हो, और इन दोनों में से एक टीम जीत के आएगा आपके पास. मान लो T1 आ गया और यहाँ से T4 आ गया. सो वो सेमीफाइनल था. अब ये दो टीम जो मिली उसके बीच में आप फाइनल मैच रखोगे, और एक टीम जो है वो विनर होगी. दिस इज नथिंग बट अ टूर्नामेंट ट्री वेयर एट अ लीफ लेवल, ओके, you have all team details. You have all team details. लेकिन जैसे ही आप अपर लेवल मतलब जाते हो आगे, तो ये लेवल जो है वो आपको मैच डिटेल देता है. हर एक बॉल पे क्या हुआ था, कितने रन पे कौन आउट हुआ, और वो सब, और लास्ट में विनर कौन रहा. दैट विल बी योर नोड इंफॉर्मेशन. सो दूसरी मैच में कौन विनर रहा और मैच कैसा रहा वो भी मिल गया आपको. So here when you say, look, when you say a node is having data, when you say a node is having data, now this data can be anything. This data can be anything. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब नोड बनाते हो तो वहां पे एक नंबर ही रखोगे. Well, that node can have your name, or that node
which is having left pointer and right pointer, where you are defining data, that data can have much more information like team name, then team players, player 1, player 2, player 3, player 4. Even it can have a coach, it can have a medical officer, everything you can store as a data here. So this data becomes an object. एक्चुअली ये क्या हो गया, टीम की जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी डिटेल एक ऑब्जेक्ट में डाल दी मैंने, एंड आई हैव ऑब्जेक्ट हियर. अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी अ डेटा विद इन अ नोड. ओके, विद इन अ नोड. सो डेटा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, हो सकता है. सो व्हेन यू से T1, T2, T3, T4, यहाँ पे आप टीम डिटेल डाल दो. बट व्हेन यू से this is match 1, this is match 2, this is match 3, तो वो नोड क्या हो जाएगा, मैच डिटेल्स आ जाएंगी. इट कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जो भी स्टोर करना है कर लो. सो यू कैन क्रिएट अ टूर्नामेंट ट्री विच गिव्स यू द एवरीथिंग अबाउट दैट टूर्नामेंट. फर्स्ट मैच क्या रहा, कौन जीता, सेकंड मैच क्या रहा, कौन जीता, एंड एवरीथिंग. So you can have a tournament of any play where you have n number of players or participants or teams. और जैसे ही आप उनके बीच में मैच रखते हो, you have something winner. So अगर 8 प्लेयर है तो राउंड 1 में 4 विनर मिलेंगे आपको, एंड फर्दर यू गो विथ फर्दर राउंड्स, एंड एक एक करके आपको फाइनली विनर मिल जाएगा. राइट? सो अ टूर्नामेंट ट्री is another application of a tree which you can use if you want to store those informations. There are few more applications also. Whenever you say that you want to maintain hierarchical data, you can go for tree. किसी भी तरह का hierarchical data अगर आपको store करना है, you can always go for tree. Family tree is the best example. Organizational tree can also be there. Organization के अंदर जितने भी employees हैं उसका भी एक tree बना सकते हो. So on top of the tree, सबसे ऊपर root कौन हो सकता है? CEO of that company, right? And then under that CEO maybe उनके managers या departments या department heads हो सकते हैं. And under those departments, every department has their employees, तो employee आ सकता है, and so on. So those kind of hierarchical data you can maintain using tree. When you use tree, it makes your information easy to search. Easy to search. Why? क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपने राइट पार्ट निग्लेक्ट कर दिया, और अगर राइट जाते हो तो लेफ्ट निग्लेक्ट कर दिया. आपका काम छोटा हो जाता है ऑन एवरी डिसीजन दैट यू टेक. बाइनरी सर्च ट्री का एग्जांपल देख लो. सो आप ट्री बना सकते हो इफ यू वांट टू मेक योर सर्च प्रोसेस इजियर वन, तो आप ट्री यूज कर सकते हो. अगर आपको सर्च प्रोसेस इजी बनानी है तो आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करो, एंड टू बी स्पेसिफिक बाइनरी सर्च ट्री यूज करो. Look, this can be done because every tree node contains an object, a complex object as a data. और अगर वो ऑब्जेक्ट एज अ डेटा है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी पैरामीटर को मैं की मान के उसको सॉर्ट कर सकता हूं. आई कैन कीप माई डेटा इन अ सॉर्टेड मैनर. मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया. बाइनरी सर्च ट्री का फायदा ले लिया यहाँ पे. You keep your data in a sorted manner based on a key. और वो की क्या हो सकता है? It can be anything. मान लो कि आपके पास काफ़ी सारे टीम्स की डिटेल्स हैं, आपके पास काफ़ी सारे टीम की डिटेल है. अगर आप वही डिटेल को ट्री में स्टोर करते हो कर लो, लेकिन अगर आप
टीम नेम से सर्च करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टीम नेम से उसको सॉर्ट करके रखोगे। मतलब बाइनरी सर्च ट्री जब बनाते हो तो आप सॉर्ट किस तरह से करोगे, टीम नेम से। लेकिन अगर मान लो कि आपको वही टीम्स का डेटा वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से रखना है तो वो भी हो सकता है। यू कैन सॉर्ट योर टीम्स इन अ ट्री, लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट। कैसे करोगे, तो लेस ग्रेट किसको कंसिडर करोगे, वर्ल्ड रैंकिंग को कंसिडर कर लो। सो बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया यू कैन क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री, और वो आपको टीम सर्च करने में हेल्प करेगा। So that is one more example. Now, even routing algorithms makes use of tree. Now, what is router? Well, maybe computer network subject जो है वो आपको next semester में आने वाला है. So it might be the case you are not aware of what is router. But सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो, router एक तरह से हार्डवेयर है जिसको हम यूज करते हैं when we want to create a computer network. सिंपल सी बात है, दो कंप्यूटर को आप डायरेक्ट वायर लगा के कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन व्हाट इफ यू वांट टू कनेक्ट 10 कंप्यूटर्स, 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो एक दूसरे के साथ, तो क्या आप 10-10 वायर लगाओगे? नो। व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ सेंट्रल प्लेस, एक एक बीच में कोई ऐसी स्पेस एक बनाएंगे जहां पे सब आके कनेक्ट हो जाए। नाउ देयर आर नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस टू मेक दिस हैपन। हब है, राउटर है, स्विचेस है। सो डिफरेंसेस आप देखोगे बाद में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट राउटर, तो राउटर क्या करता है, राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास जो भी डेटा आता है वो डेटा को वो परफेक्ट राउट, परफेक्ट रास्ते पे भेजे। तो बीच में जो बैठा है, राउटर जो बीच में बैठा है, वो उसका काम क्या है, एक तरफ से डेटा आया तो उस डेटा को वो दूसरी तरफ भेजेगा, सेंड करेगा। नाउ राउटर नीड्स टू नो कि भाई मेरे साथ कौन कौन कनेक्टेड है। अगर मुझे वो पता है तभी मैं परफेक्ट पाथ पे डेटा फॉरवर्ड कर सकता हूं। सो इन अ नेटवर्क वी कॉल इट अ पैकेट। आपका डेटा जो है वो पैकेट्स में सेंड होगा, और पैकेट क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ पोस्ट कार्ड। ओके, आप क्या करते हो, पोस्ट कार्ड लिख के जैसे ही पोस्ट करते हो तो क्या होता है, दैट पोस्ट कार्ड हैज अ परफेक्ट एड्रेस। एड्रेस भी स्ट्रक्चर्ड एड्रेस है, घर का नाम, देन प्लॉट नंबर, एंड देन regional area, landmark, and then road name, then you have a city, and then you have a pin code and everything. So based on a pin code या तो city name जो भी है, वो आपका पोस्ट कार्ड जो है वो राउट होता चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पोस्ट ऑफिस वाला देखेगा अच्छा ये कहाँ जाना चाहिए, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, तो वो महाराष्ट्र भेजेगा। जैसे ही महाराष्ट्र जाता है, इवन इन महाराष्ट्र जो पोस्ट है वो देखेगा अच्छा ये कहाँ जाना चाहिए, थाने या मुंबई, बेस्ड ऑन पिन कोड एंड सो सेम वे राउटिंग प्रोसेस हैपेंस इन योर नेटवर्क ऑल्सो। और राउटर वही काम करता है कि कहाँ से पैकेट आया और कहाँ वो पैकेट जाना चाहिए। अब वो ये प्रोसेस कैसे कर सकता है, बिकॉज एवरी राउटर हैज आइडिया कि भाई मेरे साथ और कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, and those computers or those endpoints are further having data or not. So इस तरह से ये एक राउटर का जो प्रोसेस है वो ट्री के डिपेंडेंट हो जाता है। So internally those routers makes use of tree data structure to take a decision. कौन सा डिसीजन, भाई मेरे पास जो पैकेट आया वो पैकेट कौन सी ब्रांच पे जाना चाहिए, वो डिसीजन लेने के लिए जो अल्गोरिदम है वो इंटरनली ट्री का यूज करते हैं। Yeah. So these are the few applications of trees. आपको ट्री कहाँ कहाँ दिख सकते हैं, where you can use trees, right? So that's all for today. We'll stop here. What we have covered till now in a tree, we started with basic definitions and concepts. उसके बाद हमने देखा था कि ट्री हम स्टोर कैसे कर सकते हैं यूजिंग एरे या लिंक लिस्ट। Then we have gone for tree traversals.
pre-order, in-order, post-order, level order. After that, we have seen binary search trees, BST, insert, delete operation, search operation. Then today, we have seen general trees and binary trees, conversion processes. We have seen threaded binary trees and applications of trees. This is what we are done. We have completed. In our next lecture, we are going to see the balanced tree mechanisms. अब बैलेंस करते हो तो किससे बैलेंस करोगे, हाइट से या वेट से? So we have two different types of balanced trees. So whenever we have a next lecture, we'll go through the balanced tree mechanisms. Obviously, it will be after your mid 2. So once you come back from your second mid examinations, we will go through the balanced tree mechanisms. That is nothing but AVL tree, B plus tree, Huffman tree. That's all for today. Thank you. Thank you everyone for being part of this session here. All the best for your mid exams. See you soon. Bye-bye.